Hello students, myself Mrs. Pinky Sharma, PGT Commerce. We are here after a long time. As we know, we are facing a very difficult time these days, and that is the reason we are starting the online classes. Because of the corona, 11th class students are upgraded to 12th class without examination. I know it is very difficult for you as well as for me also to do the online studies, but I make you assure that we will do it. Definitely we will do it. We need some time for the perfection, but we will do it. First of all, I want to show you the syllabus of 12th class business studies. I am giving the weightage of marks as per chapter. This is online classes, so if you want to note it down anything, you can note it by pausing the video. Today we will run RBSC book, and I know you don't have any material of study, but I am giving you the photographs or I am giving you the YouTube material for the textbook. By this you can write down the notes also, you can write down the question answer also. So first of all, you have to note it down the syllabus and the weightage of the chapters. We are going through the online studies, that's why I am taking a very simple chapter from this syllabus, and this is the 8th chapter, advertisement. मैं जानती हूँ कि बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडीज से सब चीज़ें समझना, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट जो चैप्टर 8 है उससे शुरुआत करूँगी. सो लेट्स बिगिन विथ इट. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, I am giving you the introduction page in which you can read out the introduction, giving on the first page meaning of advertisement. We all using this word routinely. It means you are know very well what is advertisement. Advertisement क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम इसे रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं और रोज समझते हैं. So, as a businessman, if I am going to do some business, then I have to make the advertisement of my product. बिना एडवर्टाइजमेंट के मैं अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकती, चाहे मैं वो सर्विस प्रोवाइड करूं, चाहे मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं. सो इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इफ आई एम गोइंग टू गिविंग एनी सर्विस टू माई कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट. यहाँ पर हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की बात करते हैं. हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं एज वेल एज हम उनको सर्विस भी देते हैं. एंड फॉर बोथ, इट मीन्स फॉर द प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर द सर्विसेज, आई हैव टू मेक सम एडवर्टाइजमेंट टू गिव द इंफॉर्मेशन टू माई कस्टमर. सो वी कैन से एडवर्टाइजमेंट मीन्स गिविंग द इंफॉर्मेशन about the product to the customer. Without advertisement, they are not getting the information about the product. So, first of all, I am showing you the introduction page by which you can get everything about the advertisement. You can see here there is a advertisement introduction is giving here, and I am starting now by the meaning of advertisement. Advertising is causing to know, to remember, to do. It means by the advertisement I can give the information to my customer and they get the knowledge about my product. And second definition is given here. Advertising is a paid form of non-personal presentation. It means advertisement is a non-personal presentation. We can see the advertisement on the television, we can read it in the newspaper, we can get the information by the pamphlets, hoardings, boarding, etc. etc. It means there are so many different types of ways by which we can do the advertisement. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे कस्टमर को दे सकती हूँ, चाहे वो सर्विस हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं अपनी सोसाइटी को, अपने कस्टमर को दे सकती हूँ बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट.
डेली रूटीन में हम इस चीज़ को हमेशा सुनते हैं, बट एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और उसको किस तरह से कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो डेली रूटीन में लोग एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ एक टीवी पर, न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट के थ्रू या होर्डिंग बोर्डिंग्स जो हम देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगते हैं सिटीज़ में, उसके थ्रू वो समझते हैं। बट यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज लेंगे। इन द एडवर्टाइजमेंट इट इज़ वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअलाइज, नॉन विजुअलाइज। मतलब एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम पर्सनल, नॉन पर्सनल ले सकते हैं। विजुअल मतलब देख सकते हैं, नॉन विजुअल इट मीन्स ओनली ऑडियो, जिसमें हम सिर्फ आवाज़ें सुनते हैं, उसमें हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे लाइक रेडियो, रेडियो इज़ नॉन विजुअलाइज, जहाँ हम सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बट in the TV we can see, we can hear. So there are different forms of advertisement by which we are giving the information to our customer. So we can say advertisement is a communication between the manufacturer and the customer. It is a communication between the seller and the customer. So now we are discuss about the characteristics of advertisement. The first characteristics is mass communication process. Mass it means बहुत सारे लोग एक साथ. Okay? Mass का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ. So advertisement is a mass communication process. मतलब एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना. So by the advertisement we provide the information for the मास. इट मीन्स एक ही साथ बहुत लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना. सो इट्स अ मास कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक ही बार में हम बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मास कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहां पर हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में. Then second one is informative in action. Informative in action मतलब information देना action के थ्रू. Informative, information, in action मतलब actions. हम अपने action से it means चाहे वो visualize हो चाहे non visualize हो, एक action होता है और उस action के थ्रू हम अपने customers को information provide करते हैं. एडवर्टाइजमेंट में हम एक एक्शन करते हैं और उस एक्शन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं. सो इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव इन एक्शन. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है परसुएसिव इन एक्ट. परसुएसिव इट मीन्स लोगों को मनाना. परसुएशन जो हम समझते हैं, परसुएशन का मतलब होता है लोगों को तैयार करना, लोगों को मनाना. सो परसुएशन एक्ट इट मीन्स by the advertisement we are going to pursue to our customer. मतलब हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके हमारे कस्टमर्स को रेडी करते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. इट मीन्स हम जानते हैं इन प्रेजेंट वर्ल्ड इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सेल आवर प्रोडक्ट. हम जानते हैं दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. It means if I want to sell any type of product, I have to face so many competition. हम जानते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट नया बनाएंगे ऑलरेडी दे हैविंग सो मैनी कॉम्पिटिशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, चिप्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो हमें पता है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे चिप्स अवेलेबल हैं. तो अगर मुझे अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं या मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे अपने प्रोडक्ट को उस तरह से रेडी करना पड़ेगा जिससे आई कैन मेक परसुएशन टू माई कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट. इट मीन्स आई हैव टू फेस सो मैनी कॉम्पिटिशन. मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा. जब तक मैं अपने कस्टमर्स को परस्यू नहीं करूँगी, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज माई प्रोडक्ट. तो मुझे अपने कस्टमर्स को पहले क्या करना होगा, मेंटली प्रिपेयर करना होगा. उन्हें मुझे परस्यू करना पड़ेगा, उन्हें रेडी करना पड़ेगा कि वो मार्केट जाएं और मेरा प्रोडक्ट खरीदें. इट मीन्स देर आर सो मैनी कॉम्पिटिशन.
If they have in the market there are 10 types of chips are available, so I have to make a good quality in a lesser price. अगर मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हूँ कम रेट में, तो नेचुरली मैं अपने कस्टमर्स को परस्यू कर सकती हूँ कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदें. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉम्पिटिटिव एक्ट. कॉम्पिटिटिव एक्ट मैंने अभी आपको बताया कि नाउ डेज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. हमें हर चीज़ में कंपटीशन को फेस करना पड़ता है. सो वी कैन से द एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉम्पिटिटिव एक्ट. जब तक मैं अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर नहीं करूँगी कि मैं अपने प्रोडक्ट को इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल कर सकूँ, तब तक मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती. सो इट इज़ मीन दैट for selling my product I have to face the competition, and because of the advertisement I can pursue my customer to purchase my product. कैसे? जब मैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये बताऊंगी कि my product is better than the other product, my cost is lesser than the other product, then only I can pursue my customers to purchase my product. So the fourth characteristics is it's a competitive act. एडवर्टाइजमेंट करना एक तरह से कॉम्पिटिटिव एक्ट होता है. आप एक तरह से कंपटीशन कर रहे हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए. देन नेक्स्ट वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. इफ आई एम गोइंग टू डू एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब एडवर्टाइजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट. एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ है और प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है. इट इज़ नॉट कंबाइंड. इट मीन्स आई एम प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन अ चीपर रेट, बट स्टिल आई हैव टू डू एडवर्टाइजमेंट इन अ बेटर वे. मैंने अगर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, कम रेट पे बनाया है, बट अगर मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मैं ढंग से नहीं करती हूँ, तो आई विल नॉट बी सक्सेस. जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है. इट मीन्स जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करूँगी इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर ना तो उससे अट्रैक्ट होंगे और ना उसे खरीदेंगे. इसका मतलब पहले मुझे प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना ही बनाना है, बट आई हैव टू मेक अ गुड एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट. जब तक मैं अच्छे से उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी, तब तक मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. सो the next characteristic is it is paid for. It means advertisement is not a free form. It's not a free. It means if I want to make any advertisement of the product, I have to pay for it. बिना पैसों के हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. It means I have to spend the money for making the advertisement. So it is a paid form. मतलब मैं जब तक पैसा पे नहीं करूँगी, तब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. मतलब जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच चलता है, उसमें हम देखते हैं, या हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, या हम कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें आप देखिए कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है. इफ़ यू आर गोइंग टू द थिएटर, मूवी थिएटर, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में या इन द इंटरवल देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट इज गिवन इन द थिएटर. जैसे इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट, मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, बट ऑन बिहाफ ऑफ मी द मार्केटर और द डीलर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट. समटाइम्स इट इज़ डूइंग बाय द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो. मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, जैसे अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं ही उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँ. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट किसी मार्केटर से या किसी डीलर से कर रहा हूँ. इट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू डू द एडवर्टाइजमेंट. उसके बिहाफ पर कोई भी मार्केटर या डीलर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है. सो वी कैन से इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द आइडेंटिफिकल पर्सन. वो स्पॉन्सरशिप कोई भी कर सकता है, जैसे मैं एज अ मैन्युफैक्चरर और सेलर और मार्केटर और डीलर, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें से कोई भी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग या हम कह सकते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है. सो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर मतलब अगर मैं किसी और को एडवर्टाइजमेंट करने का मौका देती हूँ या मैं उसको
ऑर्डर देती हूँ कि आप मेरे बिहाफ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट करो, तो वी कैन से इफ़, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में आप देखिए कि जो प्लेयर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ब्रांड का टी शर्ट पहनते हैं, है ना। जैसे वीवो हुआ या ओप्पो हुआ, ये जो मोबाइल कंपनीज हैं वो अपने नाम का टी शर्ट उन क्रिकेटर्स को पहनाती है। इट मीन्स जो क्रिकेट चल रहा है उसको किसने स्पॉन्सर किया है, वीवो या ओप्पो ने। तो एक तरह से वो अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू द प्ले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल मतलब वहाँ जहाँ पर हम पर्सनली अवेलेबल नहीं है या हम पर्सनली वहाँ पर नहीं हैं। जैसे लाइक वी कैन से वी आर वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टेलीविजन। इट मीन्स द एडवर्टाइजमेंट इज नॉन पर्सनल, वहाँ पर कोई पर्सनली आकर उस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज वी आर वॉचिंग ऑन टेलीविजन। इफ़ वी आर गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, अगर हम न्यूज़पेपर के थ्रू देखें तो हम वहाँ पर न्यूज़ को, उस एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर्सनली नहीं हो रहा है। सो वी कैन से एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन खुद आकर उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। वी कैन हियर, वी कैन सी दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेलेक्टेड टारगेट मार्केट। सेलेक्टेड टारगेट मार्केट मतलब आई हैव टू सेलेक्ट माई टारगेट। यहाँ पर मेरा टारगेट कौन है, कस्टमर। मैं जिस तरह का प्रोडक्ट बना रही हूँ उस तरह का टारगेट, उस तरह का कस्टमर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इफ आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब अगर मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ तो हु इज माई टारगेट, हु, फार्मर्स, है ना। मैं अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मेरा टारगेट मार्केट कौन होगा, फार्मर्स, मतलब किसान, है ना। वाई, बिकॉज दे आर गोइंग टू परचेज माई प्रोडक्ट, वही मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन इफ आई एम गोइंग थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड इफ आई एम गिविंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द अर्बन एरिया, अगर मैं शहर में जाकर मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो क्या वो यूजफुल होगा, नहीं, है ना। क्यों, बिकॉज माई टारगेट इज इन लिविंग इन रूरल एरिया, वो कहाँ पर रहते हैं, गाँव में। अगर मैं कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेरा सेल करना चाहती हूँ तो वो मैं कहाँ पर करूँगी, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में मुझे क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करना होगा, है ना। इट मीन्स इफ आई एम सेलिंग एनी rural type of product, I have to make the advertisement in rural area, not in urban area. अगर गांव में यूज होने वाले प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मैं अर्बन एरिया में करती हूँ, मतलब शहर में करती हूँ, तो इट इज यूजलेस। इट मीन्स फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट माई टारगेट कि मैं किस तरह का प्रोडक्ट बना रही हूँ और मुझे मेरे कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे, वो सेलेक्ट करूँगी, मतलब मेरा टारगेट सेलेक्ट करूँगी, एंड देयर आफ्टर आई विल मेक द एडवर्टाइजमेंट। The next characteristics is advertisement is differ from sales promotion. Listen carefully. It is very important point. Advertisement is differ from sales promotion. How? Advertisement का मतलब होता है विज्ञापन, है ना, जो हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, but it is totally differ from sales promotion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, बोथ हैविंग डिफरेंट आइडियाज। लाइक एडवर्टाइजमेंट इज फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ किया जाता है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में। बट इन द सेल्स प्रमोशन वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट as well as we are going to make sure about our quality and about our prices. Like number 1, sales promotion is irregular but advertisement is regular. देखिए advertisement is regular how, because we are watching that particular advertisement daily, okay, but sales promotion is irregular. sales promotion कभी भी regular नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सेल्स प्रमोशन उसी कंडीशन में किया जाता है वेयर वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल, जहां पर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है, वहां पर हमें सेल्स प्रमोशन की जरूरत पड़ती है।
इट मीन्स हाउ इट इज डिफर, एडवर्टाइजमेंट इज रेगुलर, जो रोज हमें टीवी पर दिखाई देता है, लेकिन सेल्स प्रमोशन रेगुलर नहीं होता है, वो सिर्फ उसी कंडीशन में दिखाया जाता है जहां पर उनको अपनी सेल को बढ़ाना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में सेल नहीं बढ़ाते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो फॉर द इंक्रीजिंग द सेल, बट सेल्स प्रमोशन इज फॉर इंक्रीजिंग द सेल एट अ बिगर लेवल, है ना। सेल्स प्रमोशन हमेशा पर्सनल होता है, पर्सनली किया जाता है, और एडवर्टाइजमेंट हमेशा नॉन पर्सनल होता है। इसी का सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। सेल्स प्रमोशन इज नीड इज लेस बट एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे? एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? देखिए, कोई चीज़ अगर हम रेगुलर देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बट सेल्स प्रमोशन इज नॉट रेगुलर, ओके, सो वी कैन से advertisement is necessary than the sales promotion. Why? Because it always remind the customer about the product. देखिए, एडवर्टाइजमेंट हमेशा लोगों को याद दिलाने के लिए होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट सेल्स प्रमोशन सिर्फ उसी कंडीशन में किया जाता है जब सेल को इंक्रीज करना होता है, ओके। देन नंबर 3, सेल्स प्रमोशन वेरियस पॉलिसीज आर यूज्ड। इट मीन्स वी कैन से एडवर्टाइजमेंट एक बार जो बन गया है, ठीक है, वो सेम एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पर रोज देखते हैं, ओके, बट इन द सेल्स प्रमोशंस दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। इट मीन्स दे आर यूजिंग द डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग द सेल। सेल्स प्रमोशन में कई तरह की स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर इज गिवन हियर, सेल्स प्रमोशन, उसमें हम सेल्स प्रमोशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो इस लेवल पे हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि सेल्स प्रमोशन इज डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट इज रेगुलर बट सेल्स प्रमोशन इज इरेगुलर। उसको रेगुलर दिखाने की जरूरत नहीं है या उसको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड था कि सेल्स प्रमोशन इतना नेसेसरी नहीं है, इट इज नॉट मच नेसेसरी देन द एडवर्टाइजमेंट। और थर्ड हमने पढ़ा था कि इन द सेल्स प्रमोशन वी आर एडॉप्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, बट इन द एडवर्टाइजमेंट वी आर गो थ्रू द सेम पॉलिसी। इसी में फोर्थ पॉइंट है आपका, in the sales promotion there is a direct contact with the customer, but in the advertisement there is non-personal. as we know, non-personal कैसे कि एडवर्टाइजमेंट हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं, उसको पैम्पलेट के थ्रू देखते हैं या होर्डिंग बोर्डिंग्स पे देखते हैं। बट सेल्स प्रमोशन इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इट मीन्स बाय द सेल्स प्रमोशन वी कैन डू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आवर कस्टमर। इट्स अ पर्सनल वे, है ना। पर्सनली हम अपने कस्टमर को उसको बताते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन हम देते हैं। सो देयर आर 10 characteristics of the advertisement. Up to that you can write the notes with the help of this textbook. So these are the characteristics of advertisement. I am going to give you the pages of these characteristics. You can note down, you can make the notes of the characteristics, and in next lecture we will discuss about the objectives and functions of advertisement. Thank you.